Okay, children, Assalamu alaikum. This is Shazia Rana, your vice principal and English teacher. We are going to conduct our session number 9, that is the dignity of work. And today is 28 July. Time is 9 o'clock, and we are in session number 9, part number 1. So let's see what is happening in dignity of work. Okay, children. This is our chapter number 7, dignity of work. And we are conducting part number 1, in which I'm going to explain you about the chapter. Okay, before starting the topic, dignity of work, dignity of work, the meaning of dignity of work in Urdu is that mehnat mein azmat hai. But the one who is putting efforts is actually great. So hard work is always obliged, always anybody is grateful regarding the hard work or the efforts. Okay, let's watch this video first. So after that, we will start the topic. Okay, children. The video itself is saying that everybody should work and should know the value of work. It is not that one who is working uh, is fine, but not only one work is enough for everyone. Everybody should know every work. I am a teacher, I am a vice principal, I am an IT professional. मुझे अपने सारे कामों का पता है कि मैंने क्या क्या काम करने हैं, but is it all in all? कि टीच कर लिया, स्कूल चले गए, वाइस प्रिंसिपल का रोल कर लिया, सारे काम कर लिए, तो ये क्या इनफ है? इसके देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, अदर वर्क आर देयर इन द वर्ल्ड व्हिच नीड्स टू बी नोन. बहुत सारे ऐसे काम है दुनिया में जो कि हमें पता होने चाहिए. हाँ, क्या हम वो सारे काम करते हैं? क्या हम वो सारे काम नहीं करते हैं? हम वो सारे काम अगर नहीं करते हैं तो हमें उन काम को कैसे पता चलेगा? वी शुड नो. देखिए, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता. काम तो काम है, और किसी भी काम को करने में अशेम्ड फील नहीं करना चाहिए. एज इट्स नॉट दैट कि मैं अगर वाइस प्रिंसिपल हूँ तो मैं कुकिंग नहीं कर सकती.
क्यों नहीं कर सकते भाई? कुकिंग कर सकते हैं, इट्स अ नीड, हमें अपने लिए खाना तो बनाना होता है ना, so that is important. So let's talk about the chapter में देखते हैं कि what actually they are saying, then we will be discussing that again, which the point which I'm discussing right. Okay, okay children, this is the dignity of work is the story of a boy who came late from a school one day. एक दिन ऐसा था, एक ऐसा लड़का जो कि स्कूल से लेट आया, उसका नाम अख्तर है. तो देखते हैं कि क्या फीलिंग्स हुई उसके साथ. ओके, अख्तर केम लेट फ्रॉम स्कूल वन डे. अख्तर एक दिन स्कूल से लेट आया. He was feeling cross and looked untidy. Cross, थका हुआ. वो बहुत थका हुआ नजर आ रहा था. एंड लुक्ड अनटाइडी, वो बहुत शेबी भी हो रहा था. When mother asked him the reason, he did not answer. जब उसकी मदर ने उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया. So as the family sat down to lunch, the children's favorite uncle Mr. Inayat came to visit them. जब इसके बाद ये सब लोग जब लंच पे जमा हुए, लंच दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, उस वक्त सब जमा हुए, तो उस वक्त खाने के वक्त इनके एक फेवरेट अंकल मिस्टर इनायत भी वहां मौजूद थे. वो उनसे मिलने के लिए आए थे. The children were very happy to see him because he had been to many parts of the world and always told them interesting things. बच्चे उनसे मिलकर बहुत खुश होते थे क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में बहुत सी जगहों पर वो जा चुके थे और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें वो बताते थे. Even अख्तर was not cross anymore. यहाँ तक कि अख्तर भी अपनी तमाम थकन भूल गया. Okay. Akhtar's sister Rukhsana told Uncle Inayat that he had came home very unhappy. अख्तर की सिस्टर रुखसाना ने अंकल इनायत को बताया कि ये स्कूल से जब वापस कर आया है तो बहुत नाखुश था. अंकल इनायत looked at him and asked him what had happened. अंकल इनायत ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ. He said, Uncle, we are having the social service work at school and have to do the work of servants and gardeners. अख्तर ने बताया कि अंकल हमारे स्कूल में सोशल सर्विस का काम शुरू हुआ है और हमें हम सबको नौकरों और मालियों का काम करना पड़ेगा. गार्डनर्स आर द माली, द वन हु इज वर्किंग इन गार्डन, एंड सर्वेंट्स जो घरों में काम करते हैं, नौकर, को सर्वेंट्स कहते हैं. द टीचर मेड मी डस्ट द कबर्ड एंड द डेस्क. टीचर ने मुझे कबर्ड और डेस्क यानी कि अलमारी और मेजों की मट्टी साफ करने के लिए कहा. अंकल, इज इट वर्क दैट मेक्स यू क्रॉस? अंकल इसकी बात से पहचान गए. उन्होंने कहा कि अच्छा ये वो काम था जिसकी वजह से तुम थक गए. अख्तर, शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट? अख्तर ने जवाब दिया, तो क्या मुझे नहीं थकना चाहिए? क्या मैं नौकर बनने के लिए काम करूं? अंकल ने जवाब दिया, डिड योर टीचर डू एनीथिंग हिमसेल्फ? कि क्या तुम्हारे टीचर ने कोई और काम किया? जैसे आप सबने ये काम किए थे, तो क्या आपके टीचर ने भी ये काम किए थे? अख्तर said, oh dear yes. अख्तर ने फौरन जवाब दिया कि जी हाँ. After we had taken out the desk, and chairs, the teacher swept the room and emptied the dustbin. जब हमने यानी कि हम सब स्टूडेंट्स ने क्लासरूम से डेस्क और चेयर बाहर निकाल दिए, तब टीचर ने क्लासरूम में स्वीपिंग की और डस्टबिन भी खाली किया. स्वीपिंग, झाड़ू लगाना. The headmaster cleaned the bathroom, which made us all feel ashamed. हमारे हेडमास्टर साहब ने बाथरूम साफ किया, जिसकी वजह से हमें बहुत शर्मिंदगी हुई. Uncle, is it a matter of a shame to clean what we ourselves make dirty? अंकल ने जवाब दिया. अंकल ने सवाल किया, क्या वो सारा कुछ जो हम पूरे दिन में गंदगी फैलाते हैं, क्या उसको साफ करने में शर्मिंदगी होती है? अख्तर ने जवाब दिया, But think of a gentleman cleaning the bathroom. Shouldn't the sweeper do it? अख्तर ने जवाब दिया, और वो जो शख्स रोजाना बाथरूम साफ करने के लिए आता है,
क्या ये काम स्वीपर का नहीं है? अंकल ने फिर से सवाल किया, इज द स्वीपर नॉट अ ह्यूमन बीइंग? क्या स्वीपर एक ह्यूमन बीइंग नहीं है? क्या स्वीपर एक इंसान नहीं है? अख्तर ने जवाब दिया, जी हाँ वो है, यस ही इज। अंकल ने एक और सवाल किया, आर नॉट आर सर्वेंट्स ह्यूमन बीइंग लाइक अस? क्या हमारे नौकर हमारी तरह इंसान नहीं है? अख्तर, आई शुड से दे आर, मुझे कहना चाहिए कि वो हमारी तरह इंसान हैं। अंकल, then we should treat them as we treat ourselves and always be ready to do ourselves what we ask them to do. अंकल ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा कि हमें उनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि हम अपने आप को ट्रीट करते हैं, और हमें दूसरों को इन सब तैयारियों का मौका देते रहना चाहिए। अख्तर ने कहा, बट इट लुक सो ऑड, ये बहुत अजीब लगता है। ऑड मीन्स अजीब लगना। इट लुक्स सो ऑड, ये बहुत अजीब लगता है। अंकल, uncle was continuing to mold Akhtar again and again to not feel ashamed of it. Yes, perhaps it does, but this is because we have forgotten the noble example of our holy prophet. हाँ, ये अजीब लगता है, लेकिन जहाँ हम अपने आखिरी पैगंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नोबल एग्जाम्पल भूल रहे हैं। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे लिए, जिनकी जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल थी, हम उनको यहाँ पर भूल रहे हैं। He would never ask anything to do anything. वो किसी भी काम से मना नहीं करते थे, which he himself would not do. वो बहुत सारे काम जो वो कर सकते थे वो खुद करते थे और किसी काम से मना नहीं करते थे। He loved doing work for himself and for others with his own hand. वो अपने लिए और दूसरों के लिए अपने हाथों से काम करना पसंद करते। He repaired his shoes. उन्होंने अपने जूते खुद मरम्मत किए। मेंटेड एंड वॉश्ड हिज क्लोथ्स, वो अपने कपड़े खुद सी लेते थे, ठीक कर लेते थे और उनको वॉश भी कर लेते थे। एंड स्वेप्ट हिज रूम, और अपने कमरे में झाड़ू भी खुद लगाते थे। व्हेन द मॉस्क एट मदीना वाज बीइंग बिल्ट, जब मदीना में मस्जिद की तामीर हो रही थी, ही कैरीड मड एंड बिल्डिंग मटेरियल, उन्होंने मिट्टी और बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि ब्लॉक्स वगैरह होते हैं वो सब भी उठाए अपने हाथों से। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ द खंदक वॉर जब हुई थी, he joined his companions in digging the trench outside Medina. मदीना से बाहर जो खंदक खोदी जा रही थी, ट्रेंच खंदक, जो खंदक खोदी जा रही थी, उन्होंने अपने साथियों का पूरा पूरा साथ दिया उसकी खुदाई में, उसको डिग करने में। डिगिंग का मतलब होता है खुदाई करना। Ruxana have taken part in the dialogues. She was saying, were his companions not like him, uncle? रुखसाना ने पूछा कि क्या उनके साथी उनकी तरह नहीं थे? अंकल ने कहा, यू आर राइट रुखसाना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। Hazrat Abu Bakr not only did his own work but also fetched water for widows and neighbors who were very old and had no one to work for them. उन्होंने कहा कि रुखसाना तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हुजूर पाक की तरह से ही हजरत अबू बकर ने भी बहुत से काम अपने हाथों से किए। वो ना सिर्फ तमाम काम करते थे बल्कि बेवाओं और यतीमों के लिए, जो कि कहीं जा नहीं सकते या घर में ही रहते हैं, उनके लिए पानी भी लेकर आया करते थे। वो लोग जो बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकते, उनकी भी खिदमत किया करते थे। ये हजरत अबू बकर की बात की। अब हजरत उमर की बात हो रही है। हजरत उमर once carried on his shoulders a large sack of flour for a needy family. हजरत उमर एक मर्तबा अपने कंधों पर एक बहुत बड़ी बोरी अनाज की लेकर आए, अनाज जो हम खाते हैं, गंदम वगैरह। हजरत उमर की बात ये हुई। अब हजरत अली की बात हो रही है। हजरत अली labored in garden of a Jew and gave away his wages in charity. हजरत अली ने बाग, पूरा एक बाग खरीदा और उसे एक यहूदी के हवाले कर दिया, और उससे जितनी भी मजदूरी के नाम पर जितने भी पैसा आता था वो तमाम का तमाम चैरिटी में, खैरात में देते थे। चैरिटी का मतलब होता है खैरात, अल्लाह के नाम पे देना। हजरत फातिमा फेच्ड वाटर अराउंड कॉर्न एंड स्वेप्ट द हाउस। हजरत फातिमा पानी लेकर आती थी और अपने घर के आसपास छिड़काव किया करती थी।
और उसी पानी से अपने घर को वॉश करती थी. Caliph Umar bin Abdul Aziz refused to hire a servant to help his wife. खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उन्होंने घर में कोई भी नौकर रखने से मना कर दिया था और वो अपनी वाइफ के साथ हेल्प करवाते थे, तो पूरे घर का काम वो दोनों खुद करते थे. Caliph Mamun al-Rashid served not himself but also his guests. खाने की मेज पर खलीफा मामून रशीद जो है वो खाना मेहमानों के आगे खुद लगाते थे, खुद उन्हें सर्व करते थे. सुल्तान नासिरुद्दीन earned living by making caps and emperor. सुल्तान नासिरुद्दीन उनके पास अर्निंग कहाँ से आती थी? वो कैप्स बनाते थे, टोपियां बनाया करते थे, जिसकी वजह से उनका घर का गुजारा चलता था. एंड एम्परर औरंगजेब ट्रांसक्राइबिंग द होली कुरान. जो औरंगजेब बादशाह थे उन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा किया करते थे, लिखा करते थे. अख्तर. Now Akhtar took part in the conversation. He said, "But uncle, all these are the stories of the past." ये सब तो पुरानी बातें हैं. Uncle, oh no, it happens in the advanced countries even today. That have learned the dignity of work while we have forgotten it. अंकल ने कहा नहीं, वो सब पुरानी बातें तो थी, लेकिन आज के जमाने में भी ये सब हो रहा है, जहाँ पर काम की अजमत को, काम की इज्जत को भुलाया नहीं जा सकता. Likewise in China, everyone has to spend some time each year working in the fields or in a factory. जैसे कि चाइना में हर साल हर शख्स को, जो हमारे सुपीरियर काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, उनको भी वर्किंग इन द फील्ड्स और इन अ फैक्ट्री, उनको खेतों में और फैक्ट्रीज में कुछ टाइम के लिए काम करना होता है. इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ डू दिस वर्क. यहाँ तक कि वजीर आजम और उनकी फैमिली को भी ये काम करने होते हैं. दे बिलीव दैट ऑल ought टू वर्क एंड नो वंडर दे आर मेकिंग सच क्विक प्रोग्रेस. वो ये बिलीव करते हैं कि ये सब काम करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि इसमें अजमत है और इसकी वजह से तेजी से काम तरक्की कर सकता है. In USA, once I stayed with a high government official as a guest. His son, who was just as old as you are, went out early in the morning to sell newspaper. वो अंकल ने ये बताया कि यूएसए में जिस स्टेट में वो रहते थे, वहाँ का जो हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनका बेटा सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर देने के लिए जाया करता था. न्यूज़पेपर सेलर था वो, जिसको ये हॉकर कहते हैं. I asked him why he did so. अंकल ने उससे पूछा कि तुम न्यूज़पेपर सुबह सुबह डालने क्यों जाते हो? He said that it was simply because he wished to be independent and useful. One day he fell ill. उसने बताया कि ये मुझे आज़ादी महसूस होती है और मेरे लिए बहुत कारआमद है. One day he fell ill. His father went out to deliver the papers for him so that he may not lose his customers. एक दिन वो बीमार हो गया तो उसके फादर जो कि हाई ऑफिशियल थे, वो उसकी जगह न्यूज़पेपर डालने के लिए गए ताकि उसके कस्टमर्स लूज ना हो जाए. Once the president's own son took the job of whitewashing rooms in a hotel. प्रेसिडेंट के बेटे ने एक होटल में वाइट वॉशिंग का काम भी किया है. रुखसाना. अंकल, डिड यू डू एनी क्लीनिंग व्हेन यू वर देयर? रुखसाना ने पूछा कि अंकल, जब आप यूएस में थे क्या आपने कभी क्लीनिंग की? अंकल ने कहा, ओ यस, आई लिव्ड इन अ हॉस्टल where we swept out our own rooms and cleaned our bathrooms. उन्होंने कहा कि हम हॉस्टल में रहते थे और हमें अपने कमरों में खुद झाड़ू लगाना होता था और अपने बाथरूम खुद साफ करने होते थे. Once when I needed extra money for books, I washed dishes in a hotel. जब मुझे अपनी कुछ बुक्स खरीदनी होती थी तो मैं होटल में डिशेस भी वॉश करता था so that I can earn more money to purchase the books. Akhtar, thank you uncle. I will never mind working with my hands in future. अख्तर इनकी ये तमाम बातें सुनकर बहुत सेटिस्फाई हुआ और उसने कहा कि अंकल, मैं कभी भी अपने हाथों से काम करने को बुरा महसूस नहीं करूंगा. This is the end of part 1. Okay, children. Do you understand the story? Kindly unmute your mics and tell me, do you understand the story? Yes, ma'am. Okay, Samira, do you understand the story? The story is all about a boy who was feeling ashamed while working in the school for social work. And his uncle have guided him that
Working other than your work is not bad thing. It's a good thing. We have to learn each and everything what we are doing, and we should not feel ashamed on it. Fine. अच्छा, स्टार्टिंग में हम कुछ बात कर रहे थे, मैं अपनी बात कर रही थी. लाइक आई एम अ वाइस प्रिंसिपल, तो क्या मैं कुकिंग नहीं कर सकती? आई कैन डू कुक. मैं कुकिंग कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है. खाना मुझे खाना है, तो मैं अपने लिए पका सकती हूँ. व्हाई शुड आई वेट फॉर द शेफ? मैं शेफ का वेट क्यों करूँ? मैं खुद बना सकती हूँ. ठीक है, वो भी तो इंसान है ना, उसको भी तो रेस्ट देना चाहिए हमें. अदरवाइज अदरवाइज भी आप देखें, लाइक मेकिंग बेड्स, अपने बिस्तर बनाना, अपने रहने का कमरा साफ सुथरा रखना, कमरों में स्वीपिंग करना, झाड़ू लगाना, वॉशरूम्स वॉश करना, डिश वॉशिंग करना, ये सब हमारे घरों के काम है, और इसको करने में कोई शेमफुल बात नहीं है. हम सबको ये सारे काम करने चाहिए, और इसमें कोई हर्ज नहीं. इफ वी आर हैविंग अ सर्वेंट, फाइन, ठीक है, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो रख लें, लेकिन बेहतर है कि हम अपने काम खुद करें. आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से काम है, और वो काम किस किस तरीके से होते हैं. ठीक है. Now I'm concluding the session over here for part number 1, and after 5 minutes we'll be starting part number 2 for exercise. Okay. Allah Hafiz for 5 minutes. Bye.